कि एक बंदे ने एक काम किया और उसको उसमें सक्सेस मिल गई, तो अब हमारा पूरा खानदान वही करे, हम और कुछ काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। राइट। तो मैंने ये जो है ना NCSCT करके इस टर्म को सर्च करके जॉब सर्च की। Everyone is actually thinking of that as one organization, but that is only one. बहुत रिजेक्शन मिला, बहुत ज़्यादा, कि मेरा स्किल इशू है। हालांकि मैंने मेडिसिन किया है, मैं डॉक्टर हूँ, ये सारी चीज़ों को भी साइड रख दो, मेरे को UK बेस्ड स्किल इशू है। मेरे को अपनी स्किल को अलाइन करना है इन लोगों के सिस्टम के साथ। ये अगर मैंने नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। देखो, दो चीज़ों पे चलती है जॉब मार्केट। एक, आपके पास स्किल क्या है, स्किल कैसे आएगा। If you are looking to study abroad, then watch this full video and subscribe to our channel to stay updated. हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? बताइए। बस एकदम बढ़िया। नहीं बट गुड, थैंक्स फॉर कमिंग यार। आई नो डायरेक्टली ऑफिस से भागते हुए आ रहे हो तुम। नहीं कोई टेंशन। योर कन्वर्सेशन मोस्ट एक्साइटेड अबाउट यार हेल्थ केयर में सब लोग बोल रहे हैं रोज बहुत हैं। पब्लिक हेल्थ को लेकर के बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार मत जाओ बिकॉज पब्लिक हेल्थ के बाद कोई जॉब ऑप्शंस नहीं है। योर व्यू इज कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी एंड योर व्यू इज वेरी जॉब है, and I'm saying what you have a very insider view on what is healthcare in Absolutely. UK, how to get jobs in healthcare in UK. So that is why I'm very excited. Not just myself, but I think for the entire student community यार उन्हें पता चलना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा बताओ यार कमल अपने बारे में। इंडिया में मैं दिल्ली से, रोहिणी से पहले तो वो किया होम्योपैथी, BHMS। तो वो 5.5 साल का कोर्स है। राइट। जहाँ पे मैं प्रैक्टिस एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर एज वेल। होम्योपैथिक डॉक्टर। आपकी वेयर वाज योर क्लिनिक? दिल्ली में थी, रोहिणी में थी। वो फिर उस टाइम पे मैंने थोड़ा देखा कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, अब ज्यादातर लोग क्या है, वो होम्योपैथी के बाद कुछ चले जाते हैं MD करने, कुछ इधर उधर जॉब देखने, नहीं तो बहुत सारे लोग ना MPH पब्लिक हेल्थ करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा कि कुछ तो करना है। इंडिया से करें MPH, बाहर से करें, फिर देखा यार UK का जो पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क है ना, वो काफी अच्छा है। Why did you pick UK as a country? There's a thing called like cost benefit analysis. If I'm spending some money, which obviously I did not had at that time, but if I'm spending some money, what's coming out of it? What's the return of investment, basically? So you have to see, if I'm studying in the university in Bombay or Jaipur, and I'm staying away from my family, all my expenses are gonna go up. But what's the scope of MPH in India? I knew some of my seniors who actually did masters in public health in India, and they were struggling to find like really good paying job, and they were stuck at job which were paying them around let's say 35,000 a month, and they were there in those jobs for like few years now. Now that's something kind of made me question that is it even worth it to go there, spend 2 years of my life, and then go into a job which initially will pay me let's say 25k, and then eventually I'll go up to 35, and I don't think so that's good enough. That is rupees per month, you are saying, right? Yeah, just like 35,000 rupees a month. I genuinely do not think that is good enough, right? Now then I started to look other options and look for a country which might sustain a better return of investment. And I think, I mean, if you look at the public health framework, UK has one of the strongest health framework anywhere except Australia. Australia has really good public health framework. So that's something piqued my interest, and the value of that degree is much higher than any degree I would ever get in India. So what did you study in the UK? I studied masters in public health. Okay. And I did my masters from Birmingham City University. Birmingham City University. Initially, I was not even planning to go to Birmingham City University because I thought I would not get it. I actually got my offer letter from, there's another university in Cambridge called Anglia Ruskin University. Right. But I realized like Birmingham City University is better than Anglia Ruskin. Right. Because I checked the whole, like this whole Times Magazine ranking and rating, and I did check the modules, and I think that was better for Birmingham City University, but I did not get any reply from them, and I had my offer letter from Anglia Ruskin University. Right. So at that moment I was really stuck, and I kind of, this installment payment, right? The deposit that you had to make. Yeah, so it was like 5 lakh rupees. Right. Which I did made. 5 lakh rupees in university, and all right, so you had already paid. Yes, I did pay my first installment
but it's more of a like a temporary money that you give to them to Right. secure your seat. Now, rest of the money you can obviously come to the university and then pay it. Right. But even at that time, I was waiting for Birmingham City University's response to me, right? Right. And my hopes were going down. And at one point, I actually went to my local SBI branch Right. and went ahead to pay rest of the money. For some reason, Yeah. that payment got rejected Right. because I did not fill some details correctly. And then You they know, there's said, destiny. that's destiny. And I went back to SBI and I said, oh, I filled it now. And the lady said on reception, like, even if I submit your file now, Yeah. it will be processed on Monday, Right. So there's no point. Why don't you come on Monday? I said, that's fine. So I'll just come on Monday then. Can you imagine? Monday morning, I woke up with an offer letter from Birmingham City University. So yeah, that's how I got into Birmingham City University. And I do remember at that time, like there were flights were canceling. Right. So I did book my Air India ticket, but that flight got cancelled and things got delayed. And even at that time, like everything was going online. So I Right. started my studies online. I had my induction while I was in Delhi. Right. But eventually on 18th of Feb, I finally got onto my flight, which was from Virgin Atlantic. And yeah. So when did you complete your I finished my MPH in 2022 March. March? Tell us now, I think what's most exciting about your story is to understand your journey in terms of how did you manage or navigate the healthcare industry in the UK? How did you start? From the very early on, I had this idea that I need to do my study properly because I need to get a job which is suited to my position. Most of my friends at that time, like there was a culture among international students to only and only talk about part-time jobs. Restaurant कर लो, आप warehouse कर Hello. आप शॉप में लग जाओ, Care आप home करो। केयर होम कर लो, Yeah. आप मैकडोनल्ड्स में लग जाओ, आप यहाँ लग जाओ, वहाँ लग जाओ, ठीक है? ये एक कल्चर था। Right. ये जो कल्चर है ये मेरे को समझ ही नहीं आया और मैं एक टाइम पे इस कल्चर के अंदर चाहता बहुत भी। उस टाइम पे अलग यूट्यूबर्स होते थे, आज हैं यूट्यूबर्स। और उस टाइम सारे दोस्त आपकी तरफ वही बातें, then you get वो influenced so much by them. देखो मैंने रेस्टोरेंट भी किए, जो शॉप्स हैं वहाँ भी जॉब की, वेयर हाउसेस में भी काम किया, चिकन शॉप्स होती हैं वहाँ भी, बट मैंने कभी भी ज़्यादा नहीं किया। जैसे मेरे फ्रेंड थे वो तो कैश इन हैंड जॉब करते थे काफ़ी मंडे भी ट्यूसडे भी तो ये कॉलेज तो जा ही नहीं रहे हैं और ये काम जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि हमें अपनी जो फी है, जो लोन है, हमने लोन पे अपनी फी भरी है, अपना लोन रिटर्न, Right. तो वो बस पैसा बना लो जितना जल्दी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म माइंडसेट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म माइंडसेट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना उनके लगता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वो इस माइंडसेट आते ही नहीं कि वो फ्यूचर वो आते हैं कि मैंने अपना बस पैसा पूरा कर लूँ किसी तरीके, मगर वो ये नहीं देखते कि आपका चलो पैसा पूरा हो जाएगा, आपका ये पैसा पूरा करने में आपको 2-3 साल लग जाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? सोचो। अब आप जिसको देखो यहाँ पे जो भी आता है वो क्या MBA बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, ये तो इतने बच्चे कर चुके हैं यहाँ पे। लो आप क्या स्टडी करते हो मास्टर्स में? इंटरनेशनल बिजनेस राइट या मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड कोई कोर्स होता है, राइट। अब आप उनसे कोर्स करोगे क्या? कोई स्कोप ही नहीं है इस कोर्स का, बिकॉज आप एक जेनरिक प्रोग्राम का जिसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्किल आपको मिल ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, और आप ये करके आप कुछ नहीं करोगे। कर भी क्यों रहे हो? क्योंकि जी हमारे एजेंट ने बोला है वो क्योंकि हमें काउंसलिंग की जरूरत लगती ना, मैं BBA करके भी कर सकता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, so that is one formula fit all। तो वो क्या, मैं जैसे इंडिया में तो बड़े वो IDP टाइप है ना, तो वो उनका काम ही कि उनका काम है यहाँ से उनको भेज देना, उसके बाद बच्चे का आगे ना करे, उनको क्या लेना देना। बिल्कुल। तो ये जो माइंडसेट है ना शुरू से आंखों में खटकी, यार ये नहीं करना यार, ये तो बट यू डिड ऑल दीज पार्ट टाइम जॉब्स, ऐसा नहीं है कि दैट यू डिड ज्यादा नहीं, सो यू मेड श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन योर स्टडीज, you are learning what you came for। Absolutely। But then how did your transition start happening towards healthcare? तो जब आप देखो स्टडी करते हो ना, आप जो कोर्स मिला है आप उसके मॉड्यूल जेन्युइनली पर अच्छी चीज़ है कि उस टाइम पे ये चैट GPT पे टाइम, तो मैंने जो भी किया वो खुद रीड कर, रिसर्च पे रिसर्च खुद रीड कर, समझ में आता है। तो आप जब थोड़ा डिटेल में गए ना अपने मॉड्यूल्स में, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ये कैसे रिले। Hi, welcome. Hello. Are you alright? London. My name is Jamie Lee, Hi Jamie। also known as
Jamila. Hi, Because Jamila. I'm a Muslim. Are you? Yeah. Are you? That's really good. Thank you for saying hi. Yeah, Like- yeah, Cheers. She was drunk. yeah. But that's the reality of this park. Like, there's so many people who drink and obviously they take cannabis and they are lying Right. around. I think that's the problem you're trying to solve. And that's something Absolutely. we would want to know more about. So you were doing your modules well. What did you learn from that? So one thing I really learned, like if you read your modules clearly, it kind of relates to what kind of jobs are available in the market, right? Like first you have to understand the system here. Basically what most people do not really try to go into is to understand how this country really works, how job market in this country really works. Because it's unlike India, it's very structured. It's not that कुछ भी चल रहा है, ऐसे नहीं है. हर चीज़ का स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं. हर चीज़ के एक कैसे समझाऊं, एक वैल्यू होती है. अगर आप फ्री वॉलेंट्री वर्क भी कर रहे हो, एक वैल्यू है ना? तो ये जो वैल्यू है उसकी हम नहीं वैल्यू कर, यहाँ पे है वैल्यू उस चीज़ की. हमें वैल्यू करना ज़रूरी है. जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ओहिड है. पहले ओहिड हम पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड था. ये समझना होगा कि यूके में सिर्फ इंग्लैंड नहीं, वहाँ पे वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी है. Right. तो पब्लिक हेल्थ स्कॉटलैंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, Right. पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड अलग है, पब्लिक हेल्थ वेल्स अलग है. Right. अभी वो सारा कंसोलिडेट करके ओहिड में कर दिया. ऑफिस ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट एंड डिस्पैरिटीज नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. वो गवर्नमेंट की है. Government की है. उस ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारी पब्लिक हेल्थ जॉब्स और उनमें नॉलेज भी है. Right. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो एक और मेजर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DHSE. Right. तो वहाँ पे लोगों को जाना होता है, चेक करना होता है. फिर उसका वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब बैंक है, वो gov.uk में आप जाओगे आप. Right. फिर उसका जो बिगेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है इस कंट्री में, वो NHS है, NHS. Right. ठीक है. तो वो NHS के आप पोर्टल पे जाओगे, वहाँ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल से सारी पब्लिक हेल्थ जॉब्स आपको दिखेगी, Right. ठीक है. आप अगर उनके NHS के जॉब पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस, ऑक्सिलरी नर्सिंग या नर्सिंग, ऑप्टोमेट्रिस्ट, है ना, ऐसे करके वहाँ पे लिखा अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल. Right. क्लिक कर, सारी जॉब्स आपको देख जो कि पब्लिक हेल्थ के हैं. Right. अच्छा, ये सारी बातें होगी नेशनल लेवल पे. Right. बाद आती हैं हमारी लोकल लेवल पे. अब विद इन दिस कंट्री आपका देयर लाइक डिफरेंट प्रोविंसेस, लाइक नॉर्थ है, साउथ है, फिर बीच में मिडलैंड्स है, और इधर जैसे इधर डेवन, कॉर्नवॉल है, दूसरी साइड कैंट है, नॉर्थहैम्पटन, साउथहैम्पटन, ये सारा एरिया सेपरेट है. So everyone has a like a district, जैसे district level हाँ. पे वैसे एक zonal level पे होता है. तो national level की आपने already बताई, and then there are similar organizations बिल्कुल. in every district. अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वहाँ सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है. काउंसिल्स, जैसे अभी आप रेड ब्रिज में हो, लंदन के अंदर आई थिंक अराउंड 30 और 50 आई डोंट नो, बट बोरोज हैं बहुत सारे. बोरो की जैसे रोहिणी, दो शोलियाज हैं दिल्ली के अंदर. हाँ बिल्कुल, वैसे ही लंदन में बहुत सारे बोरोज हैं. अभी आप जैसे रेड ब्रिज है, लंदन बोरो ऑफ रेड ब्रिज, तो रेड ब्रिज के अंदर एक काउंसिल है, ठीक है. काउंसिल का मतलब है कि वो सबती है इस बोरो में जो भी. तो बेसिकली जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल काउंसिल होती है, इट्स सिमिलर. यहाँ पर एक काउंसिल है जो बड़ी से देखती है, जिसमें हेल्थ इज अनदर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. राइट. उसी में ही अगर आप काउंसिल की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे वर्क विद अस में राइट. आप क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल सोर्सेज मिलेंगे. भाई आपने काउंसिल में अगर जॉब टाइप की जॉब की है, राइट. ठीक है. So you are saying that there are more than 30 councils in जस्ट इन London, apart from the national big ones, because होता क्या है कि हर बड़ी UK healthcare, NHS, और वहीं पर ही माइंड नहीं, सीमित. Everyone is actually thinking of that as one organization, but that is only one. That is the largest, हाँ. but it is still a very small part of the overall opportunity. बिल्कुल. Right. और उसके बाद जब आप लोकल काउंसिल्स को सर्च कर, अब उसके एक और इसके अंदर पैरामीटर है, एक और कैटेगरी आती है, एंड दैट कैटेगरी इज बेसिकली चैरिटी वर्क, राइट. सो चैरिटी वर्क इज दिस लाइक सो मेनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. जैसा दिल्ली में हम NGOs को कहते हैं ना, Right. वैसे यहाँ पे Social work in charity organizations are बस there. बिल्कुल. उसके अंदर बहुत सारी पब्लिक हेल्थ की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोस्टली ये ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल एंड ड्रग्स के अराउंड काम करती हैं. Right. अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में नाम है VIA. Okay. इट यूज्ड टू बी कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर ड्रग प्रोजेक्ट, बट अभी इसको विया बोलते हैं, ठीक है. फिर एक और है चेंज ग्रो लिव, CGL. देन एक और है थ्राइव ट्राइब, ठीक है. एक और है एवरीवन हेल्थ, एक और है लिव वेल. की बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. Right.
जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। राइट। अब उनके ऊपर देखने वाली बात है। अच्छा, उसके बाद आपने और अगर डिटेल में रिसर्च करना है, अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे जो नेशनल लेवल पे कुछ चैरिटीज़ हैं जो बहुत नेशनल लेवल पे जगह पे होती हैं। राइट। जैसे आप कैंसर रिसर्च यूके देखो, एज यूके देखो, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूके में ऑल ओवर हैं। राइट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड स्पेसेस में बहुत लोकलाइज्ड है, कुछ नेशनल। तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना है। इनके जॉब पोर्टल्स क्या है? चैरिटी जॉब्स यूके का पोर्टल, पब्लिक हेल्थ जॉब्स यूके का पोर्टल है, नर्सिंग हेल्थ जॉब का पोर्टल है। ये स्पेशलिस्ट पोर्टल्स जहाँ आपको इसी टाइप की जॉब्स मिलेंगी। Right. ये चीज़ जो है, ये आप अगर नहीं रिसर्च करोगे, मेरे को किसी ने मेरे कान में बता दिया आके वाली बात। बट हमने आज बता तो रहे हैं यार, सबके कान में बता रहे हैं, सबको हाँ। बता रहे हैं। नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देन देयर आर काउंसिल्स व्हिच आर सॉर्ट ऑफ लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन देयर आर चैरिटीज। चैरिटीज। So there are 3 types of organization, जिसके अंदर allied healthcare workers में we will have lot of opportunities, बहुत not सारी हैं। just for public health students but in general many students can apply for them. और जो भी हेल्थ केयर के काम करना चाहते हैं, आप अपना पहले तो सोच का दायरा ये केयर वर्किंग से आगे बढ़ाओ। Right. क्योंकि मेरी चीज़ फील होती है कि एक बंदे ने एक काम किया और उसको उसमें सक्सेस मिल गई, तो अब हमारा पूरा खानदान वही करे, हम और कुछ काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। Right. तो ऐसे तरक्की नहीं मिलेगी आप जब तक नया रास्ता नहीं देखोगे, है ना। मैंने भी अपना रास्ता ऐसे ही देखा, अब मैं भी वही करने लग जाऊं जो सारे लोग कर रहे हैं, तो अरे उसमें सक्सेस होते हैं कितने नहीं। आप परसेंटेज निकाल के देखो फिर खुद ही आया कि नहीं यार, 100 लोग होते हैं, 10 सक्सेस होते हैं, 90 जाते भी तो हैं। उस टाइम पे देखो मेरे को तो नहीं था कोई बताने वाला। Right. कि ये सारी जो मैं आपको पोर्टल्स की बात बता रहा हूँ, Right. ये मेरे को किसी ने नहीं बताया कैसे करते हैं, और मेरे तो दोस्त भी नहीं थे। और हर स्टूडेंट के माइंड में ना एक क्वेश्चन होता है हमेशा, हमें क्या चाहिए? स्पॉन्सरशिप। Right. इसके सिवा कितने स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में और कोई बात ही नहीं है? वो कहते हैं जॉब तो आप जॉब हमसे घास कटवा लो, अब स्पॉन्सरशिप में हमें वीज़ा चाहिए बस। तो देखो मैं उनकी बात पे एग्री करता हूँ। अब वो कहते हैं हमें वीज़ा चाहिए, ठीक है, वीज़ा आपको मिलेगा आपकी स्किल के बेसिस पे। ये कंट्री वीज़ा कैसे देती है? वो अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिख के हम स्किल बेस्ड सिस्टम पे वीज़ा देंगे। Right. स्किल आप लेना नहीं चाहते, वीज़ा आपको चाहिए। कैसे मिलेगा? आप समझ रहे हो? So I think you very well explained the overall healthcare opportunity, different types of jobs also in them, and tell us your journey. बिल्कुल, मैं उसी पे ही आ रहा था कि अब मैंने बहुत सारी जॉब अप्लाई करनी शुरू की। जब मेरा क्लोजिंग टाइम आ गया ना, उस पे अपना एमएच ख़त्म होने लगे, Right. डिसर्टेशन मैंने सबमिट कर दी, तो सिर से मेरे एक स्ट्रेस हट गया कि अरे हाँ चलो डिसर्टेशन पूरी हुई, मैं थोड़ा तैयारी करूँ। फिर उसके बाद मेरे को जहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने रिसर्च वर्कर पे की जॉब पे अप्लाई किया, Right. ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट जॉब अप्लाई की। These were in NHS? हाँ, केयर कोऑर्डिनेटर, यूथ वर्कर, ये सारी मैंने जॉब अप्लाई करनी स्टार्ट की। किसी का इंटरव्यू आया, किसी का नहीं आया। जिनका इंटरव्यू भी आया वहाँ मैं इंटरव्यू देने गया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनको मैंने बताया कि मैं देखो दिल्ली में डॉक्टर था, मेरे को ये नॉलेज, वो पैथोलॉजी पूरा पता, ये पता। वो कहते हैं आपने किसी यंग पर्सन के साथ काम किया है? मैं कहा देखो मेरी जो क्लिनिक है उसमें पेशेंट भी थे, उनके मैंने जैसे अलग अलग डिसऑर्डर हैं वो भी मैंने। वो कहते हैं आप नहीं समझ पा रहे हो, कहते हैं आप जाओ। तो बहुत रिजेक्शन मिला? बहुत रिजेक्शन मिला, बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन मैं बैठे ऐसी अपना नेट पे सर्च करूँ क्या, मेरे को ये समझ में आ गया था कि मेरा स्किल इशू है। हालांकि मैंने मेडिसिन की है, मैं डॉक्टर हूँ, ये सारी चीज़ों को भी साइड रख दो, मेरे को यूके बेस्ड स्किल इशू है। मेरे को अपनी स्किल को अलाइन करना है इन लोगों के सिस्टम के साथ। ये अगर मैंने नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने वॉलंटियर जॉब्स के लिए सर्च करना स्टार्ट किया। देखो 2 चीज़ों पे चलती है जॉब मार्केट। एक आपके पास स्किल क्या है, स्किल कैसे आएगा, या कोई सर्टिफिकेशन करो या ऐसी जॉब करो जैसे वॉलंटियरशिप कर लो। राइट। अगर ऑन द जॉब एक्सपीरियंस क्रिएटर, चाहे वॉलंटियरशिप। यस एग्जैक्टली। राइट। तो वो जो एक्सपीरियंस है उसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है, और लोकल यूके एक्सपीरियंस की एक्चुअल वैल्यू होगी। देखो ये होता है कि मतलब कंपनीज का प्रेजुडिस है, या मतलब देखो इनको सिस्टम है। मैंने शुरू में बोली थी कि सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है इस कंट्री का।
और वो भी आपको इसी बात के, इसी पैरामीटर को जज के आप इस कंट्री का सिस्टम कितने अच्छे से समझते हो। आपको वो सिस्टम समझ लिए पहले इनके सिस्टम में घुसना पड़ेगा। वो है कि आप वॉलंटियरशिप करो कोई, ठीक है, अनपेड होती है मेजोरिटी। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, पोर्टल है वॉलंटियरशिप का, वॉलंटियरशिप एंड अप्रेंटिसशिप, इन दोनों पोर्टल है। अप्रेंटिसशिप जो होती है वो पेड होती है, 18 मंथ्स की होती है, मगर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें आप मतलब लास्ट 3 ईयर से इस कंट्री में रहने वाली हैं, ऐसा ऐसा करके वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रेंटिसशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बट वॉलंटियरशिप के लिए राइट। अरे लोग कहते हैं वॉलंटियरशिप कहाँ ढूंढे, मैं कहता हूँ आप gov.uk पे वॉलंटियरशिप नहीं भी आपको मिलती, आपको जो स्किल चाहिए उस स्किल की एक कंपनी ढूंढो। उस कंपनी पे अगर ऑप्शन नहीं है वर्क विद अस में, ठीक है, आप उस कंपनी को कॉल कर लो। आप एक बात बताओ, उस कंपनी को अगर आप कॉल कर पूछोगे कि भाई मेरा ये स्टडी की है, मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, मैं मोर देन हैप्पी हूँ अनपेड वर्क के पास, आपको कोई मना नहीं करेगा। स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनीज हैं यार, मतलब दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड पीपल टू कम एंड वर्क विद देम, दे डोंट हैव मनी टू पे, तो दैट इज अ विन विन। कोई मना नहीं करने वाला। वी आर अंडर दिस प्रेशर ऑफ मेकिंग मनी, so I don't want to do volunteership. That is the challenge which I think is there in everyone's mind, because everyone is thinking short term. So now if you start thinking longer term, that's where I think that's the biggest mindset shift which needs to happen for the students to start thinking their higher volunteership, so that you are building that skill instead of just doing a job. जो वॉलंटियरशिप की बात की और मनी मेकिंग की, वॉलंटियरशिप आप कभी भी आपकी 5 डेज अ वीक नहीं, Right. वो आपकी पर है। कोई कंपनी आपको इसमें बोलेगी कि आप हमारे पास एक फ्री लेबर का काम करो, नहीं, वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, इतना पूछते हैं कि आप वंस इन अ वीक काम कर, तो उसमें आपका जो पेड वर्क है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, और आप जो वॉलंटियरशिप वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी हर कंपनी रखती है, यहाँ तक इतनी कौन है। तो आप यहाँ पे वॉलंटियरशिप किया? तो मैंने तो अभी उस टाइम पे वॉलंटियरशिप नहीं किया। जो सेकंड ऑप्शन है सर्टिफिकेशन, राइट, मैंने किया सर्टिफिकेशन, ओके, NCSCT, जो कि है नेशनल सेंटर फॉर स्मोकिंग सेसेशन ट्रेनिंग। राइट। स्मोकिंग सेसेशन, टबैको रिडक्शन, ये मेरा पहले से ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। मैंने इसमें एक असाइनमेंट भी बनाया स्टॉप स्मोकिंग में, है ना। और ये एक ऐसा टॉपिक शुरू से पसंद करता हूँ। टबैको वैसे नहीं पसंद, है ना, लोग स्मोक करते हैं, मेरे को गुस्सा चढ़ता है, तो ये को शुरू से ही माइंड में थी। फिर मैंने ये मॉड्यूल देखा, अब उसमें काफ़ी लंबा मॉड्यूल था, फ्री था, ऑनलाइन था, बट काफ़ी था उसमें लर्न करने का, तो मैंने फिर शुरू कर दिया। तो मैंने ये जो है ना NCSCT करके, इस टर्म को सर्च करके जॉब सर्च की, या स्मोकिंग सेसेशन, टबैको डिपेंडेंसी, ये जो टर्म्स हैं ये मैंने पिक किए, और इन टर्म्स को मैंने सर्च करके जॉब सर्च करना शुरू किया। अब मैंने ये जब किया तो उसका तो काफ़ी सारी जॉब्स दिखी, उसमें फिर मैंने जॉब है उस पर अप्लाई किया। एक क्राइटेरिया में यू मस्ट हैव NCSCT सर्टिफिकेट, तो मैंने कहा क्या बढ़िया बात है, राइट, और मैंने कर भी रखा था ये सर्टिफिकेट, तो मैंने अप्लाई कर दिया उनकी जॉब पे। अच्छा, ये थी साउथ एंड में, साउथ एंड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स के साथ जॉब थी। अब उस टाइम पे मैंने और भी 2-4 जॉब अप्लाई की थी जो NHS में ही थी, ये स्टॉप स्मोकिंग की। उसमें से एक थी जॉब मेरी ल्यूटन हॉस्पिटल में, ठीक है। तो NHS में ना डिफरेंट बैंड्स होते हैं, राइट। तो जो साउथ एंड के अंदर मेरी जॉब थी वो बैंड 3 की जॉब थी, ओके, और ये सेम जॉब ल्यूटन हॉस्पिटल में बैंड 4 की, तो बैंड 4 थोड़ा ज़्यादा पे होता है। राइट। सो एट ल्यूटन यू हैड बैंड 4 अपॉर्चुनिटी। मैंने जो साउथ एंड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है वहाँ जॉब मैंने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट कर ली उनका। मैंने जो कंडीशनल ऑफर लेटर है वो भी मेरे को आ गया। NHS में जॉब करते हैं ना, तो आपके ब्लड टेस्ट वगैरह सब होते हैं, राइट। बर्मिंघम से साउथ एंड तक ट्रैवल किया, 4-5 उनको मैंने ब्लड टेस्ट दिया, है ना, सारे मैंने प्रोसेस किए। उसी दौरान मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया, यार जॉब तो मेरे पास है ही, ऑफर लेटर भी आ गया है, चलो कोई बात नहीं, इंटरव्यू देने में क्या ही जा रहा है, वैसे भी बैंड 4 है, एक बैंड हायर ही है ना, ज़्यादा फर्क नहीं था सैलरी का, बट थोड़ा तो था ही। मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो मैं अपना, हाँ मगर प्रिपेयर मैं वहाँ था, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, प्रिपेयर वहाँ भी मैं सब करके गया था। इंटरव्यू दे दिया, अभी तो मैं रास्ते में था, मेरे को कॉल आ गया, कहते हैं आप क्लियर हो गया आपका इंटरव्यू, राइट, आप ले जाओ जॉब। मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरा तो सारा प्लान सिस्टम चेंज हो गया, मैंने तो कुछ और प्लान कर रखा था, साउथ एंड में मैं सारा कुछ करके बैठा हूँ, अब क्या करूँ। तो जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उससे मैंने 1 दिन पहले ईमेल डाला, मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। मैं कह भाई क्या कर रहे हो, यहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तुम्हारे पास मल्टीपल आ गई हैं। It's an area of interest we turned into certification, which he turned into a job. Absolutely. And I think that is not running in the rat race. He figured out some unique fact and used that to do searching jobs which required that uniqueness.
And that is what converted into job for him. And don't give up right now. He has some, I have talked to him before, so I know his story, but he's got some really, thrillers life after this. So keep watching and, so coming back to you, Kanwal. So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.